In this video, we will study new Keynesian economics. Some of the leading new Keynesian economists are Mankiw, Greg Mankiw is professor of economics at Harvard University, USA. Mankiw is best known in academia for his work on new Keynesian economics. Gordon, Robert J. Gordon is the professor of social sciences at Northwestern University, USA. He was the doctoral student of Robert Solow at MIT in 1967. David Romer. David H. Romer is professor of political economy at the University of California, Berkeley, in USA. He was the doctoral student of Stanley Fischer at MIT in 1985. Oliver Blunkett is a professor at Peterson Institute for International Economics, Washington, D.C., USA. He was the chief economist at the International Monetary Fund from 2008 to 2015. He was the doctoral student of Stanley Fischer at MIT in 1977. Lawrence Summers is professor of economics at Harvard University, USA. In 1991-93, he was chief economist of the World Bank. During President Bill Clinton's tenure, he was Treasury Secretary. During President Barack Obama's term, he was director of the National Economic Council. Joseph Stiglitz is a professor at Columbia University, USA. He is a recipient of the Nobel Memorial Prize in Economics Sciences in 2001. He is a former senior vice president and chief economist of the World Bank and is a former member and chairman of the US President's Council of Economic Advisors. In 2011, Stiglitz was named by Time magazine as one of the 100 most influential people in the world. He was doctoral student of Robert Solow at MIT in 1967. And Bruce Greenwald is a professor at Columbia University, USA. He has been referred to by the New York Times as a guru to Wall Street's gurus. Greenwald received Bachelor of Science in Electrical Engineering from MIT in 1967, a Master's of Science in Electrical Engineering and Master of Public Administration from Princeton University in 1969, and a PhD from MIT in Economics in 1978. तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं मैनक्यू, गॉर्डन, रोमर, ब्लैंकचर्ड,
समर्स, स्टिगलिट्स, ग्रीनवाल्ड, इन लोगों की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो है न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स. Now, what is the difference between new classical and new Keynesian macroeconomics? अब न्यू क्लासिकल और न्यू केन्जियन में क्या डिफरेंस है? न्यू क्लासिकल economists argued that here we can write new classical economists argued new classical economists argued that Keynesian economics was theoretically inadequate because it was not based on microeconomic foundations. तो न्यू क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, सफिशेंट नहीं है, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस के ऊपर बेस्ड नहीं है. न्यू केन्जियंस एग्री ऑन दिस. न्यू केन्जियंस भी इस बात को मानते हैं, बट दे डिफर हाउ मार्केट्स वर्क. पर मार्केट कैसे काम करती हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड न्यू केन्जियन अप्रोच. New classical economists base their models on perfectly competitive consumer, producer and labor markets. जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी हैं उसके लिए उन्होंने अजम्पशंस ली हैं परफेक्ट कंपटीशन की इन ऑल द मार्केट्स. कंज्यूमर मार्केट में, प्रोड्यूसर मार्केट में, लेबर मार्केट में, suppose there is perfect competition. On the other side, new Keynesian base their models on the real world imperfectly competitive markets. Their analysis is based on classical's analysis is based on perfectly competitive markets. New Keynesian is based on imperfectly competitive markets, because this is more real situation where consumers, producers and labor market participants operate with imperfect information. तो जो real situation है market की, that is like imperfect competition, not perfect competition. जो प्लेयर्स हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, लेबर, उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती इन रियल सेंस. थर्ड डिफरेंस, न्यू क्लासिकल बेस देयर थ्योरीज ऑन मार्केट क्लियरिंग मॉडल्स where demand and supply adjust quickly on the assumption that wages and prices are flexible. New classicals assume that wages and prices are flexible, so markets clear quickly. मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा बन जाता है, और अगर कोई इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस हो तो बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस अपने आप ही मार्केट द्वारा क्लियर हो जाती है. मींस अपने आप ही द्वारा इक्विलिब्रियम बन जाता है.
New Keynesians believe that market clearing models cannot explain short-run economic fluctuations. तो इनके अकॉर्डिंग, न्यू केन्जियंस के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट क्लियर होती है ऑटोमेटिकली तो फिर शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्यों आती हैं? इसलिए जो मार्केट क्लियरिंग मॉडल्स हैं वो फ्लक्चुएशंस को एक्सप्लेन नहीं करते. सो दे बेस देयर मॉडल्स, दे मीन्स न्यू केन्जियंस बेस देयर मॉडल्स ऑन स्टिकी वेजेस एंड प्राइसेस. तो न्यू केन्जियंस जो हैं ये मानते हैं कि जो वेजेस एंड प्राइसेस हैं दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर स्टिकी. मतलब चेंज नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते, स्पेशली डाउनवर्ड तो ये स्टिकी ही हैं. दैट आल्सो एक्सप्लेन व्हाई इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सिस्ट्स. तो यही रीज़न है स्टिकी और रिजिडिटी का. वेजेस एंड प्राइसेस रिजिड हैं, चेंज नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं हैं. यही रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी मतलब लोग काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है. न्यू क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती. The new classical explain that the causes of fluctuations are rational choices made by households and firms. तो households और firms जो भी rational decision लेते हैं, optimal decision लेते हैं, उसके जो outcome है वो है income, employment, etc. तो वही रीज़न है फ्लक्चुएशन का. न्यू केन्जियंस के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स डू नॉट कोऑर्डिनेट देयर चॉइसेस विदाउट कॉस्ट्स. तो जब भी हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स कोई डिसीजन लेते हैं तो कुछ ना कुछ उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है. उस डिसीजन में कॉस्ट इन्वॉल्व है. एनी कोऑर्डिनेशन कॉस्ट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन फेलियर. और यही रीज़न है बिकॉज ऑफ दैट कॉस्ट, बिकॉज ऑफ दैट सेक्रीफाइस कोऑर्डिनेशन फेलियर पाया जाता है. इसको हम स्टडी करेंगे चैप्टर में डिटेल में. देयर इज कोऑर्डिनेशन फेलियर. मार्केट्स क्लियर कॉन्टिन्यूसली एंड वेज एंड प्राइसेस एडजस्ट क्विकली. तो जैसे ऊपर था बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये क्विकली एडजस्ट हो जाते हैं. तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर ऑलवेज रिमेन इक्वल. देयरफॉर इक्विलिब्रियम रिमेन्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट. हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम रहता है अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स. बट जैसे हमने यहाँ पे देखा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है because markets do not adjust quickly in the short run, thus there remains unemployment. With rational expectations and flexibility of prices and wages, because new classical economics is based on rational expectation, hypothesis and flexibility of wages and prices. इसकी होने की वजह से any anticipatory changes in policies have no effect on output and employment. This is the policy ineffective proposition. तो न्यू क्लासिकल से के अकॉर्डिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, वो हमेशा इनअफेक्टिव रहते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस. ओनली अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन पॉलिसीज डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम फ्रॉम द नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
अगर अनएंटिसिपेटेड कोई चेंज आती है पॉलिसी में, सिर्फ वही चेंजेस इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस लेके आते हैं, जैसे हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, बल्कि इवन शॉर्ट रन में ही होती हैं ये चेंजेस, लॉन्ग रन में तो ये भी नहीं होती, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इट कैन नॉट मेक फूल फॉर्म्स फूल अगेन एंड अगेन. According to New Keynesians, when there is decrease in aggregate demand due to wage and price rigidities and market failures, फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से, मार्केट फेलियर होने की वजह से जैसे ही डिमांड कम होती है, एक्टिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, एक्टिव मीन्स इनका रोल है, कैन प्रिवेंट fall in output and employment. It means monetary and fiscal policies ineffective नहीं होती न्यू केन्जियंस के अकॉर्डिंग. These are some differences between new classical macroeconomics and new Keynesian macroeconomics. What are the main features of new Keynesian economics? These are 4 features. Sticky nominal wages, nominal also known as money wages, sticky nominal prices, sticky real wages, coordination failure. जो नॉमिनल वेज हैं वो चेंज नहीं होंगे, स्टिकी होंगे, प्राइस चेंज नहीं होगी, रियल वेज चेंज नहीं होगी, और फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बनेगी, दैट इज द कोऑर्डिनेशन फेलियर. तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 फीचर्स हैं, यही फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन करनी है इन न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स. तो जो भी ये चैप्टर है, इस चैप्टर में इन्हीं 4 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है. वन बाय वन we will study each feature. The first feature is sticky nominal or money wages. This is the sticky nominal wages, first point. In classical theory, we found that to increase demand for labor, classicals are in favor of cut in real wages through the cut in money wages. By definition, real wage is the money wage upon price, and जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग लेबर की डिमांड बढ़ाने के लिए हमें रियल वेज कम करना चाहिए. वी शुड कट रियल वेज. अब रियल वेज को कम करने के लिए दे सजेस्टेड कट इन मनी वेज. तो मनी वेज को कम करना चाहिए क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग. बट केन्जियन थ्योरी जो है, we found that Keynes is in the favor of cut in real wage. Keynes भी कहता है कि रियल वेज को कट करो, बट थ्रू इंक्रीज इन प्राइसेस, पर प्राइस को बढ़ाकर, इसको कम करके नहीं. थ्रू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट.
मतलब थोड़ा रिकवरी साइड इकॉनमी जाए, जिसमें डिमांड बढ़ रही हो, आउटपुट बढ़ रहा हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ भी जाएगी तो वो लोगों को फील नहीं होगी, इसलिए जो रियल वेज है वो कम हो जाएगी। Thus Keynes assumed sticky money wage, इसलिए जो केन्स है उसने मनी वेज को चेंज करने के लिए नहीं कहा, इसलिए केन्स के अकॉर्डिंग जो मनी वेज है दैट इज स्टिकी। न्यू केन्सियंस आल्सो होल्ड दिस व्यू दैट मनी वेजेस आर स्टिकी। तो जो न्यू केन्सियंस हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि मनी वेज स्टिकी है, we cannot change it, we should not reduce it। रियल वेज तो कम करनी चाहिए, बट क्लासिकल के हिसाब से जैसे मनी वेज कम करके रियल वेज कम करनी चाहिए, केन्स के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं, प्राइस बढ़ाकर रियल वेज कम हो जाए तो ठीक है। These are assumptions of this feature। Nominal wages are sticky, स्टिकी हैं। They are set on the basis of contracts for a stipulated period। अब इसमें क्या है कि जो फर्म है और जो लेबर है दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम सपोज 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए हम सपोज लेबर ने कॉन्ट्रैक्ट किया फर्म के साथ कि हम आपके पास काम करेंगे एट दिस वेज रेट, तो फर्म उस वेज रेट को कम नहीं करेगी, जिस टाइम तक एग्रीमेंट हुआ है उतने टाइम के अंदर। दे आर सेट टू मेक द एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ लेबर डिमांडेड टू बी इक्वल टू द एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ लेबर सप्लाइड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, लेबर की जो भी सप्लाई होगी, लेबर ने देखा आने वाले टाइम में कितनी की सप्लाई होगी हमारी, यूनियंस के बेस पे उन्होंने कलेक्टिवली डिसीजन लिया, और फर्म्स ने भी देखा कि कितनी लेबर की हमें ज़रूरत हो सकती है, तो उस हिसाब से दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो भी वेज रेट फिक्स हुई वो वेज रेट चेंज नहीं होगी। ट्रेड यूनियंस, this is from the labor side, and firms, this is from firm side, दो पार्टीज हो गई। फॉर्म ए रैशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो ये दोनों जो हैं देखते हैं कि कितनी की डिमांड कितनी की सप्लाई लेबर की हो सकती है। फॉर्म्स डिटरमिन द एम्प्लॉयमेंट लेवल on the basis of requirement in firm, in factory, firm decides the employment level कि कितनी उनको लेबर चाहिए। Workers are prepared to supply the required units of labor demanded at the fixed money wage over the period of the contract। जो वर्कर्स हैं, जो भी वेज डिसाइड हुआ उस वेज रेट के ऊपर जितनी लेबर फर्म को चाहिए उतनी लेबर यूनियन इस फर्म को देगी, जो भी वेज डिटरमिन हुआ उस वेज पर। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके दौरान जितने टाइम का वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो वेज है इट विल रिमेन स्टिकी। द एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिटरमिन्ड बाय द एक्चुअल डिमांड फॉर लेबर। तो जो एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, वो डिटरमिन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर लेबर। दीज आर सम assumptions। Explanation। Money wages are set in contracts between workers and employers। तो मनी वेज इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे डिसाइड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, विच मेंटेन मनी वेजेस ओवर एन एग्रीड पीरियड।
तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, सपोज 6 मंथ है, 1 ईयर है, उस टाइम के बीच में जो मनी वेज है वो चेंज नहीं होगी, स्टिकी होगी। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाए जाते हैं? अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहे हैं, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स दिस एग्रीमेंट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज, यूनियंस एंड फर्म्स। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिकवरीज। अब जैसे ही इकॉनमी अप साइड जाएगी, ग्रो करेगी, तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी। एंड डिक्रीजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशंस। अब जब इकॉनमी डाउन साइड जाएगी, फिर लेबर की डिमांड कम होगी। मतलब जब इकॉनमी अप जा रही है तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, जब इकॉनमी डाउन आ रही है तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। दस वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, जो यूनियन है, फर्म है, फाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स एडवांटेजियस बिकॉज, तो इन दोनों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, बिकॉज देयर आर हाई कॉस्ट्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लेबर एंड नेगोशिएटिंग फ्रीक्वेंट वेज एग्रीमेंट्स। क्योंकि जैसे ही लेबर की डिमांड बढ़ेगी या लेबर की डिमांड कम हो गई, तो लेबर की डिमांड बढ़ने के टाइम लेबर मार्केट से न्यू लेनी, कहाँ से लेबर मिलेगी, बढ़िया लेबर कौन सी होगी, तो वेज कैसे एडजस्ट होगी, कितनी वेज पे लेबर मिलेगी, ये सभी काम फर्म को बार बार करने पड़ेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो। इसलिए इस बार बार एक्सरसाइज को अवॉइड करने के लिए जो फर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए। ऐसे ही लेबर को फ़ायदा है, क्योंकि लेबर को कहाँ पे, कौन सी फर्म में कितनी वेज मिलेगी, कहाँ पे जाके काम करना चाहिए, तो बार बार ये सोचने की बजाय उन्होंने एक पर्टिकुलर फर्म के साथ सपोज एग्रीमेंट हो गया, तो उसी फर्म के पास वो जाके काम करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट का इम्पोर्टेंस है। When unions and firms start negotiations for agreed money wage rate over a stipulated period, they take a view of the expected demand for and supply of labor on the average. अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, कितनी लेबर चाहिए, कितनी वेज रेट चाहिए, मेनली वेज रेट के लिए, क्योंकि फर्म को जितनी लेबर उस वेज रेट पे चाहिए, यूनियन उतनी लेबर उन फर्म को देगी। इसलिए वेज रेट कैसे डिसाइड होती है? जैसे इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही डिसाइड होता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि जितना भी हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बना रहे हैं, सपोज 6 मंथ्स के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो आने वाले 6 मंथ के लिए फर्म डिसाइड कर लेती है कि आने वाले 6 मंथ में कितना आउटपुट करेगी फर्म और उसको कितनी लेबर की ज़रूरत होगी। ऐसे ही जो लेबर यूनियंस हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी कितनी का सप्लाई होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड डिमांड एंड सप्लाई, wage rate is decided. They know that setting very high wage rates will lead to very low employment. अब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के टाइम जो लेबर है, यूनियन है, वो बहुत ज़्यादा वेज मांगने लग जाए। ऐसे नहीं होता, क्योंकि यूनियन को पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वेज मांगेंगे तो फर्म फिर ज़्यादा लोगों को काम नहीं देगी। इट मीन्स
एम्प्लॉयमेंट फिर ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा लेबर भी वो नहीं, बहुत ज़्यादा वेज नहीं मांगते। ऑन द अदर हैंड, सेटिंग वेरी लो वेज रेट्स विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ लेबर। ऐसे ही जो फर्म भी एग्रीमेंट साइन होने के टाइम कोई बहुत ज़्यादा कम वेज ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि फर्म को पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कम वेज ऑफ़र करेंगे यूनियंस को, फिर हमारे पास लेबर काम करने के लिए नहीं आएगी, इसलिए हमें फिर शॉर्टेज हो सकती है लेबर की। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि वेज रेट डिसाइड नहीं होगा। जब लेबर एंड फर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, देन ए पर्टिकुलर वेज रेट विल बी सेटल्ड डाउन, क्योंकि बोथ पार्टीज का इंटरेस्ट होगा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। इसलिए जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा भी वेज रेट नहीं मांगेंगे, और जो फर्म है वो बहुत ज़्यादा कम वेज रेट ऑफर नहीं करेंगे। दस बोथ पार्टीज एक्ट रैशनली, सो दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, एंड एग्री ऑन सच वेज रेट्स दैट मेक द एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू द एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। तो दोनों के बीच में एक्सपेक्टेड डिमांड एंड एक्सपेक्टेड सप्लाई के हिसाब से इक्विलिब्रियम वेज रेट डिसाइड हो जाता है फॉर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डायग्राम के साथ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट वी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। दोबारा जो हम डायग्राम बनाते हैं, इसका जो मेन रीज़न है दोबारा बनाने का ये है ताकि आप स्टेप वाइज एक एक पॉइंट समझ सको हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम। सपोज दिस इज our graph paper. On horizontal axis we are taking labor, and on vertical axis we are taking suppose wage rate. This is suppose expected demand for labor D1, and this is suppose supply of labor and the equilibrium wage rate decided as suppose this point W1 अब लेबर की एक्सपेक्टेड डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे सपोज जो वेज रेट डिसाइड हुआ वो हुआ एट दिस पॉइंट E1, W1 वेज रेट डिसाइड हो गया, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम यूनिट्स ऑफ लेबर सपोज L1. In this diagram W1 is the agreed
contracted money wage rate. The expected demand for labor is this D1 and expected supply of labor is this. Both are equal at E1. Thus L1 employment is determined. Now in case of recovery, suppose इकोनॉमी में रिकवरी की सिचुएशन है, जैसे ट्रेड साइकिल होते हैं, दिस इज द रिकवरी पोर्शन. रिकवरी है इकोनॉमी में, इकोनॉमी अप जा रही है, इसलिए जो फर्म है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है. सपोज फ्रॉम D1 to D2 in case of recovery. अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है लेबर और फर्म के बीच में, इसलिए जब डिमांड D2 है, एट D2 डिमांड वेज रेट विल रिमेन सेम एट W1. वेज रेट W1 ही रहेगा and the new equilibrium point will be here. This is suppose E2 and the employment will increase from L1 to L2. अब अगर हम सपोज कॉन्ट्रैक्ट ना करते, लेबर और फर्म के बीच में सपोज कॉन्ट्रैक्ट ना होता, फिर क्या होना था? फिर हमारी जो वेज रेट है, वेज रेट होनी थी, इक्विलिब्रियम होना था यहाँ पर, वेज रेट होनी थी फिर ये वाली, और एम्प्लॉयमेंट होनी थी ये, एम्प्लॉयमेंट होनी थी सपोज L1 डैश, और वेज रेट होनी थी W2, और ये होना था पॉइंट सपोज E2 डैश. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन ना होता तो वेज चेंज हो जाते, वेज ज़्यादा हो जाते डिमांड बढ़ने से. पर उसका लॉस क्या था कि अब देखो, अब लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिली, न्यू लोगों को, वो मिली L1 से लेके L2 लोगों को. अदरवाइज क्या होना था, सिर्फ L1 से लेके L1 डैश तक ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी. इसलिए वेज रेट सेम होने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो L1 से लेकर L2 तक बढ़ गया. इसलिए हम कहते हैं कि मनी वेज रेट का लेबर को भी फ़ायदा है और फर्म को भी फ़ायदा है, क्योंकि फर्म को ज़्यादा लेबर उसी वेज रेट पे मिल गया, और लेबर को बेनिफिट है कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया. ऐसे ही अगर हम रिसेशन की बात करें, ड्यूरिंग रिसेशन सपोज जो लेबर की डिमांड है वो कम हो गई, लेफ्ट साइड सपोज ये शिफ्ट हो गई, सपोज इट इज D0. अब क्योंकि वेज रेट फिक्स है, वेज रेट फिक्स होने से इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनेगा, सपोज इट इज E0, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गया एट L0, क्योंकि रिसेशन है. बट इसका बेनिफिट देखो कि रिसेशन के टाइम भी, इवन इन द रिसेशन, तो वर्कर्स आर गेटिंग सेम वेज रेट. तो रिसेशन में भी उनको सेम वेज ही मिल रही है. एम्प्लॉयमेंट ज़रूर कम हो गया
दिस इज ड्यू टू रिसेशन। बट अगर सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता, फिर इक्विलिब्रियम होना था यहाँ पर। सपोज इट इज E0 डैश, और फिर जो वेज रेट होनी थी वो होनी थी ये, सपोज इट इज W0, और लेबर की एम्प्लॉयमेंट होनी थी सपोज L0 डैश। अब इसमें क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन ना होता तो ज़रूर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होनी थी, सिर्फ यहीं तक ही कम होनी थी L1 L0 डैश, पर वेज रेट भी फिर कम हो जाती। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है लेबर और फर्म के बीच में, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो वेज रेट है इट विल रिमेन स्टिकी एट W1। बारी बारी जो फर्म है इसको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी वेज एडजस्टमेंट करने के लिए, और जैसे ही रिकवरी हुई तो इनको आराम से ज़्यादा लेबर मिल जाएगी एट द सेम वेज रेट। और जैसे ही रिसेशन हुआ तो अपने आप ही जो लेबर वाले लोग हैं वो मान जाएंगे अपनी डिमांड कम करने के लिए, बट वेज रेट विल रिमेन सेम। तो रिसेशन ज़रूर नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि रिसेशन है इसलिए लेबर को लॉस हो रहा है, बट इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि रिसेशन पीरियड है। इसलिए रिसेशन के टाइम जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा L1 से L0, बट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि वेज विल रिमेन सेम इवन इन द रिसेशन, वेजेस विल नॉट फॉल। दिस इज द रीज़न, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द रीज़न ऑफ स्टिकी नॉमिनल वेजेस। तो हमने अभी ये 4 फीचर्स में से फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया है, स्टिकी नॉमिनल वेजेस। नाउ वी विल स्टडी स्टिकी नॉमिनल प्राइसेस, सेकंड फीचर। स्टिकी नॉमिनल प्राइसेस मतलब पहले हमने देखा कि लेबर की जो वेज है वो चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंटली, फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिकी है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो फर्म्स हैं वो चीज़ों की प्राइस भी जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते, वो चीज़ों की प्राइस को भी सेम रखते हैं, स्टिकी रखते हैं। गुड्स प्राइस रिमेन स्टिकी। क्यों? दिस मॉडल इज गिवन बाय मैनक्यू, इट इज़ आल्सो नोन एज मैनक्यू स्टिकी प्राइस मॉडल। मीनू कॉस्ट के थ्रू उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। मेन्यू वही है जो होटल रेस्टोरेंट में मेन्यू है। एक्चुअली व्हाट इज़ द मेन्यू? मेन्यू मीन्स अ प्राइस लिस्ट जिसमें चीज़ों की प्राइस लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट्स, एडजस्टिंग प्राइसेस फ्रीक्वेंटली इज कॉस्टली, दस प्राइसेस रिमेन स्टिकी। तो प्राइसेस को बारी बारी चेंज करना मुश्किल है, कॉस्टली है, इसलिए जो प्राइस है वो सेम रहती है। देखो कैसे, द कॉस्ट्स ऑफ एडजस्टिंग प्राइसेस आर कॉल्ड मीनू कॉस्ट्स। तो प्राइस को एडजस्ट करने की जो भी कॉस्ट आती है जैसे उसको कहते हैं मीनू कॉस्ट्स। चेंजिंग प्राइसेस मीन्स टू प्रिंट न्यू प्राइस लिस्ट मेन्यूज। अब देखो, अगर हम प्राइस चेंज करें
आप सोचो, सपोज देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे अच्छे मेन्यू कार्ड्स बनाए होते हैं, बुकलेट्स बनाई होती हैं, उसमें लिखा होता है कि दिस आइटम दिस प्राइस, दिस आइटम दिस प्राइस। तो अगर वो उस प्राइस को चेंज करें, इट मीन्स दे हैव टू रीप्रिंट दिस मेन्यू, तो उसके ऊपर खर्चा आएगा। कैटलॉग जो उनका बना हुआ है प्राइस लिस्ट का, वो चेंज करनी पड़ेगी, दोबारा प्रिंट करनी पड़ेगी। एंड जो भी अदर प्रिंटेड मटेरियल है वो सारा चेंज करना पड़ेगा अगर हम प्राइस चेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं मेन्यू कॉस्ट्स। और देखो, जो सुपरमार्केट है, डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, हैज़ टू रीलेबल ऑल प्रोडक्ट्स एंड शेल्व्स विद द न्यू प्राइसेस। तो जैसे हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, एक एक आइटम के ऊपर प्राइस का स्टिकर लगा हुआ है, तो अगर वो प्राइस चेंज करते हैं, इट मीन्स उनको सारे स्टिकर्स रिप्लेस करने होंगे। ऐसे उनके जो शेल्फ्स होती हैं वहाँ पे भी प्राइस लिस्ट लगी होती है, इट मीन्स वो सारे शेल्फ्स के टाइटल चेंज करने होंगे प्राइस के, तो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। और क्या करना पड़ेगा? मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, फ़ोन कॉल्स एंड ट्रिप्स बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ फर्म टू रीनेगोशिएट विद सप्लायर्स। तो जो भी फर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, घूमते हैं, एजेंट्स हैं, शॉप्स पे जाते हैं प्राइस लिस्ट को लेके, जो पहले कोई प्राइस की बेस पे सेलर्स के साथ, बायर्स के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो वो सारे उनको दोबारा फिर जाके मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, दोबारा फिर शॉपकीपर्स को जाके मिलना पड़ेगा, दोबारा फिर उनको न्यू प्राइस लिस्ट देनी पड़ेगी, और दोबारा फिर उनसे वो प्राइस चेंज करने की नेगोशिएशन करेंगे। तो इसमें जो सारी काम हैं, इस सारे में कॉस्ट इन्वॉल्व है, दैट इज़ नोन एज मेन्यू कॉस्ट। तो देखो, ये सारा कुछ चेंज करना, प्राइस लिस्ट चेंज करना, जो कॉस्ट आएगी इसमें, अगर ये कॉस्ट ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो? जो भी हम न्यू प्राइस लगाना चाहते हैं, जैसे कोई 10 रुपये की चीज़ है, हम 12 रुपये की कर दी, तो 2 रुपये प्राइस बढ़ा दी। 2 रुपये प्राइस बढ़ाने से जितना प्रॉफिट होगा वो इतना ना हो जितना 2 रुपये चेंज करने के ऊपर खर्चा आएगा। 10 से 12 करने के ऊपर जितना खर्चा आएगा, देन जो प्राइस है उसको फिक्स रखने का ही बेनिफिट है। Thus, it is profitable for firms to react to small changes in demand by keeping prices constant. तो फर्म को इसमें बेनिफिट है कि वो प्राइस को चेंज ना करे, कांस्टेंट ही रखे ओवर अ शॉर्ट पीरियड, एंड रिस्पॉन्डिंग विद चेंजेस इन आउटपुट, उसकी जगह वो आउटपुट चेंज कर ले, ऐसे। Thus, menu costs explain the short run stickiness of prices. इसलिए जो मेनू कॉस्ट हैं वो शॉर्ट रन में स्टिकी रहती हैं, क्योंकि प्राइस को चेंज करना मुश्किल है, कॉस्टली अफेयर है। तो जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि फर्म्स शुड रिस्पॉन्ड विद चेंजेस इन आउटपुट, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? सपोज देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, वो 150 रुपीज़ की कोई सपोज प्लेट देते हैं, कोई सब्जी की प्लेट है, तो अब वो 170 प्राइस करना चाहते हैं, तो 170 तो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि मेन्यू कॉस्ट है, इसलिए वो जो सब्जी है वही थोड़ी कम सर्व कर सकते हैं, सपोज लाइक दिस। इन द मेन्यू कॉस्ट हाइपोथेसिस, प्राइसेस एडजस्ट स्लोली, तो ज़्यादा चेंज प्राइस में आ नहीं रहा, बिकॉज चेंजेस इन प्राइसेस हैव एक्सटर्नलिटीज़। तो प्राइस अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें एक्सटर्नलिटी इन्वॉल्व है। एक्सटर्नलिटी का मतलब है कि किसी और के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ रहा है या किसी और का आपके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नलिटी। व्हेन वन फर्म रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, जब कोई फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करती है, इट बेनिफिट्स अदर फर्म्स इन द इकॉनमी, तो उसमें दूसरी फर्म्स को बेनिफिट मिलता है।
कैसे? बिकॉज व्हेन इट रिड्यूसेस द प्राइसेस, जैसे ही सपोज किसी फर्म ने प्राइस कम की, इट लोअर्स द एवरेज प्राइस लेवल स्लाइटली, तो एवरेज प्राइस कम हो जाएगी, एंड देयर बाय रेजेस रियल इनकम ऑफ द पीपल, लोगों की रियल इनकम बढ़ जाएगी, विच इन टर्न रेजेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल फर्म्स, तो बाकी फर्म्स के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी, इसलिए बाकी फर्म्स को बेनिफिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटी बाय मैनक्यू। तो जैसे ही एक फर्म ने प्राइस कम की, लोगों की रियल इनकम बढ़ गई, उससे क्या हुआ, जो बाकी फर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ गई। तो मैनक्यू ने इसको कहा है एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटी। विद दिस एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटी, स्मॉल मीनू कॉस्ट्स कैन मेक प्राइसेस स्टिकी। तो इस वजह से जो मीनू कॉस्ट्स हैं उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो स्टिकी रहती हैं, जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती। These are some assumptions of this model. There is an imperfect competitive market. Suppose जो market है वो imperfect competitive है, which consists of a number of monopolistic firms. Monopolistic competition type situation है suppose, इसलिए हमने ये जो AR है, MR है, इसको डाउनवर्ड बनाया है। परफेक्ट कंपटीशन में ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। Second assumption is firms produce differentiated products because of the monopolistic nature. Monopolistic competition है जिसमें इसकी एक assumption है that firms produce differentiated product but they are close substitute. Firms are price makers because of competition, monopolistic competition. प्राइस एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व कॉस्ट्स फॉर फर्म्स, तो प्राइस एडजस्टमेंट फर्म करती नहीं क्योंकि प्राइस को चेंज करना इसमें खर्चे वाली बात है, इसलिए प्राइस को सेम रखा जाता है। द डिमांड कर्व्स आर लीनियर, सपोज जैसे हमने ये बनाए हैं लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व डी। एमसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल, जैसे ये है एमसी कर्व, सपोज अज्यूम कर लिया हमने, सपोज इट इज constant. Now let me draw this diagram again step by step. This is suppose X commodity, this is price and cost. बिल्कुल वैसे ही डायग्राम है जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बनाते हैं। सपोज दिस इज डिमांड D1। अब ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए जो MR है वो बिल्कुल इसके डबल फॉल करती है। तो कोई भी अगर हम पॉइंट लगाएं, सपोज इट इज 0 to 3, 1 2 3, तो इसका 1.5, ये बिल्कुल इसका हाफ हो गया। ये है MR, suppose it is MR1, cost we assumed, suppose cost is same, suppose this is MC, horizontal है,
MC. Suppose it is B1 point. Now what do we say? Equilibrium condition, MR equals to MC. This is equilibrium. E1 equilibrium output X1 and equilibrium price AR के ऊपर जाकर हम देखते हैं. This is equilibrium price. Suppose it is A1, this is suppose P1. तो ये सपोज करो फर्म का मेन्यू कार्ड बन गया कि हमने इतनी प्राइस के ऊपर इतना आउटपुट सेल करना है. एट P1 प्राइस वी विल से सेल OX1 आउटपुट. और अगर हम यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देखें फर्म के, यहाँ पर फर्म के जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि दिस MC हॉरिजॉन्टल है, इट मीन्स दिस इज आल्सो AC. तो AR इतना ऊपर है AC से. दीज आर द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. सपोज इट इज B1, E1, A1, P1. These are the supernormal profits. B1, E1, A1 and P1. ये हैं इनके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इस टाइम. ये तो हो गया सिंपल इक्विलिब्रियम. अब हम इसमें क्या शो करना चाहते हैं कि अगर सपोज करो फर्म के आउटपुट की डिमांड चेंज हो जाए तो फर्म जल्दी जल्दी प्राइस को चेंज नहीं करेगी, प्राइस को P1 ही रखेगी बिकॉज ऑफ द मेनू कॉस्ट्स. सपोज जो डिमांड है, दिस डिमांड सपोज ये कम हो गई, सपोज इट फॉल्स एंड डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स. सपोज करो ये डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई. सपोज दिस इज न्यू डिमांड कर्व. D0. Now we will draw MR curve on the basis of this new D0. MR curve ऐसे ही हम सपोज ये 3 पॉइंट्स हैं 1 2 3, तो इसके 1.5 पे हम ये पॉइंट लगा रहे हैं. दिस इज सपोज न्यू MR curve, MR 0. Now if you check equilibrium is at this point, MRMC. This is E0. Equilibrium output is this X0, and equilibrium price on the basis of D0 line. This is the equilibrium price suppose on the basis of this D0 line. इस D0 के ऊपर गए हम. This is suppose equilibrium price P0 and this is suppose A0. तो ये जो हमने A0 पॉइंट लगाया है, दिस पॉइंट, ये हमने D0 लाइन के ऊपर लगाया है. MR1 का कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट पे.
ऐसे नहीं सोचना कि MR1 D0 जहाँ पर क्रॉस हो गए वहाँ पॉइंट लगाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पॉइंट लगाया है अपने इक्विलिब्रियम के हिसाब से। इस इक्विलिब्रियम से हम डिमांड तक गए, जैसे पहले गए थे E1 से हम D1 तक गए, ऐसे ही हम E0 से D0 तक जा रहे हैं। D0 पे हमने लगाई प्राइस P0। तो अगर फर्म प्राइस चेंज करें तो इसका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा। आउटपुट लेवल इज X0 एंड न्यू प्राइस इज P0। तो अब अगर हम इसके प्रॉफिट्स देखें तो अब इनके प्रॉफिट बन गए B1, E0, A0 and P0. This is the new profit level. But फर्म ये नहीं करेगी, फर्म ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ऐसे फर्म नहीं करेगी, ये नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ मेनू कॉस्ट फर्म विल not change price. Price will remain sticky at P1। तो प्राइस P1 पर ही रहेगी। इट मीन्स जो P1 प्राइस है, P1 प्राइस के ऊपर जो फर्म के आउटपुट की डिमांड है, दिस इज suppose A0 dash, A0 dash ये डिमांड है फर्म के आउटपुट की, दिस मच। सपोज इट इज X0 dash एंड फाइनली जो इसके प्रॉफिट होंगे फर्म के वो यहाँ तक से अगर हम देखें, दिस इज AC, दिस इज AR, तो फिर फाइनल प्रॉफिट होंगे वो होंगे B1 के A0 डैश एंड P1। What we want to explain that even if there is small change in demand, as per equilibrium price should be P0, but firm is not changing price from P1 to P0 because of menu costs. Therefore price remains sticky at P1। The firm will reduce the price only in one condition। अब प्राइस को कम करेगी फर्म सिर्फ इस एक कंडीशन में कम कर सकती है, इफ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्नड आफ्टर लोअरिंग प्राइस विल बी मोर देन द मेन्यू कॉस्ट। मतलब प्राइस अगर फर्म चेंज करे, जैसे P1 से P0 करे, तो उसमें जो खर्चा आएगा दैट इज़ द मेन्यू कॉस्ट। लेबल चेंज करना, मीटिंग वगैरह पे जाना, शेल्फ्स की प्राइस चेंज करना, जो कुछ भी हमने देखा था, नई प्राइस लिस्ट प्रिंट करना, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर प्राइस चेंज करने का जो खर्चा आएगा, अगर वो खर्चा इस प्रॉफिट से कम हो, क्योंकि ये प्राइस चेंज करने के बाद प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ज़्यादा हो, चेंज करने के ऊपर जो खर्चा है, प्राइस को चेंज करने के ऊपर जो कॉस्ट है
मीनू कॉस्ट वो कम हो, ओनली देन फर्म विल रिड्यूस दिस प्राइस, अदरवाइज प्राइस विल रिमेन sticky. The criticism of this model: it includes only those costs which are occurred on price adjustments. तो इस मॉडल ने सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को लिया है जो प्राइस की एडजस्टमेंट पे आती हैं. These are not the costs that are occurred on output adjustment. अब आउटपुट को इन्होंने कहा था कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर भी कोई कॉस्ट है वो इन्होंने नहीं दिखाई. MC इज़ नॉट सेम थ्रू आउट, जैसे इन्होंने एज्यूम किया. हम पहले भी स्टडी करते हैं MC यू शेप, तो ये हॉरिजॉन्टल मानना ठीक नहीं है. Critics pointed out that due to use of computers, मीनू costs are very small. तो आजकल जैसे कंप्यूटर्स हैं, रेट लिस्ट फटाफट विद इन 1 डे चेंज हो जाती हैं, तो इतना कॉस्टली नहीं है. मीनू कॉस्ट की बहुत ज़्यादा नहीं है. स्मॉल मीनू कॉस्ट्स कैन नॉट एक्सप्लेन रिसेशन इन द इकॉनमी. और अगर थोड़ी बहुत मीनू कॉस्ट भी है तो ये नहीं कि इस कॉस्ट की वजह से रिसेशन आ गया. स्मॉल मीनू कॉस्ट्स में बी इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल फर्म. माइक्रो लेवल पे जैसे हमने अभी एनालिसिस किया, माइक्रो लेवल पे थोड़ी बहुत मीनू कॉस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बट दे आर अनलाइकली टू अफेक्ट द इकॉनमी एज अ होल एट मैक्रो लेवल. अब मैक्रो लेवल पे वो इकॉनमी के ऊपर अफेक्ट डालेंगे, रिसेशन के कारण बनेंगे या इकॉनमी में चेंज आएंगे इस मीनू कॉस्ट की वजह से, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट. We studied 2 features: sticky nominal wages and sticky nominal prices. For the explanation of these 2 features, other 2 features, sticky real wages, coordination failure, third and fourth point, must watch second part of this video. Thank you.